Assalamualaikum dear students, I'm your English teacher from Silk School of Tomorrow. So grade 4, yesterday we have completed our unit number 4. Today is your exercise. Exercise solve करते हैं आज. And here are your MCQs. MCQs में आपके 4 options दिए गए हैं जिसमें आपने correct option को टिक करना है या circle करना है. So let's get going. Circle the correct option. A tumbler of oil is a. आप लोगों ने टम्बलर ऑफ ऑयल यूनिट पढ़ा है. ऑप्शन ए है ये एक पोइम है, बी स्टोरी है, सी या फिर एक लेटर है. सो टम्बलर ऑफ ऑयल इज अ वेरी गुड, दिस इज अ स्टोरी. सर्कल ऑप्शन बी. Number 2, why was Tony in a fix when the shopkeeper told him that the tumbler could contain only 7 cents worth of oil? टोनी उस वक्त सोच में क्यों पड़ गया जब शॉपकीपर ने उसको बताया कि टम्बलर में जस्ट 7 सेंट्स का ऑयल आ सकता है. ऑप्शन ए है टोनी डिड नॉट वांट टू डिसोबे मदर. टोनी अपनी मदर को डिसोबे नहीं करना चाहता था. इज इट करेक्ट ऑप्शन? बी टोनी हैड ब्रॉट द रॉन्ग टम्बलर. टोनी गलत टम्बलर ले आया था. क्या ये करेक्ट है? या सी टोनी हैड फॉरगॉटन व्हाट मदर आस्क्ड हिम टू डू. टोनी भूल चुका था कि उसकी मदर ने उसे क्या कहा था. So which one is correct? Yes students, very good. A is correct. Circle the A. Tony did not want to disobey mother. Tony अपनी मदर को disobey नहीं करना चाहता था. 3 है What was the problem in a tumbler of oil? Tumbler of oil में actually problem क्या था? A option है Tony had only 7 cents. Tony के पास just 7 cents थे. No, Tony के पास तो 8 cents थे. It means कि ये option नहीं हो सकता. बी है टोनीज टम्बलर वॉज नॉट बिग इनफ. टोनी का टम्बलर बिग नहीं था. या फिर सी है देयर वाज अ होल इन द टम्बलर. टम्बलर में होल था. ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि टम्बलर में तो होल नहीं था. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि टोनीज टम्बलर वॉज नॉट बिग इनफ, कि टोनी का टम्बलर बिग नहीं था. बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने की. ऑप्शन सी तक आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करेंगे. Now next is your page number. This is your page number 27. Here are long O sounds. ऐसे words जिनमें O आता है. So this is an oral activity for you. Dear students, repeat with me. Told, fold, program, banjo, stroll, cold, ago, protect, piano, potato, sold, cargo, robot, open, yogurt. Now we will use these words in the blanks. Fill in the blanks with the words from the word list above. The word list is given above and we will use these words in the blanks. The shopkeeper dashed Tony a tumbler of oil. Shopkeeper ने टोनी को tumbler of oil का क्या कहा? The shopkeeper dashed Tony a tumbler of oil. Sold. Shopkeeper ने उसको बेचा. The shopkeeper dashed Tony that his tumbler was too small. Shopkeeper ने टोनी को बताया. Shopkeeper told कि तुम्हारा tumbler जो है वो बहुत छोटा है. Number 3, it was wonderful to have a bowl of hot dash soup for dinner on a dash winter night. So, it was wonderful to have a bowl of hot potato. Very good. Hot potato soup for dinner on a cold winter night. Number 4, long dash. A clown play a fiddle and dash to entertain the king. Long, बहुत पहले की बात है. Long ago. A clown played a fiddle. Fiddle is piano. Piano को बोलते हैं to entertain the king. Banjo. Banjo भी एक musical instrument होता है. B-A-N-J-O. Banjo to entertain the king. King को entertain करने के लिए क्लाउन जो था, जोकर जो था, वो पियानो और बैंजो बजाता था. The plane carried a dash of fresh produce. The plane carried a cargo. सामान जो प्लेन्स इधर से उधर लेके जाते हैं. The children were excited to dash watch a television on dolphins last night. इसमें से कौन सा वर्ड होगा? टेलीविजन पे क्या देख रहे थे बच्चे? डॉल्फिन्स का प्रोग्राम. वेरी गुड. राइट प्रोग्राम इन दिस ब्लैंक. यारो GRAMME program. Number 7. Mr. Roberto invented a dash that could play the dash. Mr. Roberto ने एक इन्वेंट किया. क्या इन्वेंट किया? रोबोट इन्वेंट किया. वेरी गुड. ROBOT रोबोट.
जो कि क्या प्ले कर सकता था? पियानो। वेरी गुड। नाउ वी हैव डन दिस पेज. दिस इज योर वर्कबुक, पेज नंबर 12. पंक्चुएशन जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग ने यूज करने हैं कोटेशन मार्क्स. यूज द करेक्ट पंक्चुएशन फॉर द सेंटेंसेस. करेक्ट पंक्चुएशन को यूज करना है सेंटेंसेस के लिए. कैन यू हियर अस? शाउटेड द नॉटी चिल्ड्रन. नॉटी चिल्ड्रन ने शाउट किया कि क्या आप हमें सुन सकते हैं? अब बच्चों की जो बात है, स्पोकन वर्ड्स हैं, वो ये है कैन यू हियर अस. तो स्पोकन वर्ड्स को मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास में राइट करते हैं. यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और इन दोनों, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि दो मेन क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा भी लगाते हैं, राइट कॉमा, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे. मिसेस चैन वार्नड. मिसेस चैन ने वार्न किया, प्लीज लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली सुने. सो मिसेस चैन वार्नड, इसको सेपरेट करेंगे और मिसेस चैन के स्पोकन वर्ड्स आगे हैं. स्पोकन वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में, यहाँ पर सेंटेंस एंड हो रहा है, राइट फुल स्टॉप, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे. ये रूल्स मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ. बाकी के सेंटेंसेस पे आप पंक्चुएशन साइंस इसी तरह से लगाएंगे. जो स्पोकन वर्ड्स होंगे इनको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करना है और एंड पे फुल स्टॉप लगा देना है. नाउ दिस इज अवर टुडेज लेक्चर. आप इसको लर्न करेंगे, सारी चीजों को रिवाइज करेंगे, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस एंड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिट, और आप किसी को सुनाएंगे भी और टेस्ट देंगे इस यूनिट का. ओके, ग्रेड 4. खुदा हाफिज.